Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, students and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the physical properties of alkenes and chemical reactions of alkenes. First of all, what are the physical properties of alkenes? Number one, physical state. As you know that alkenes start from carbon 2, that is when there are two carbon atoms, then ethene is formed. Carbon 2 to carbon 4 if are present, then alkenes will be present in gaseous state. When carbon 2 to carbon 4 are present, while when carbon 5 to carbon 15 are present, then alkene are present in liquid state. जबकि आपको पता है कि अल्कीन्स के में मैंने आपको बताया था कार्बन 5 टू कार्बन 17 लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि कार्बन 16 एंड अबव आर इन सॉलिड स्टेट. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑर्डर. Alkenes have, my dear students, alkenes have characteristic smell and have luminous flame. Number 3, polarity, slightly polar. Alkenes are slightly polar. The alkenes have sp2 hybridization, so they have comparatively S character high as compared to that of alkanes. In alkanes, sp3 hybridization S character is less, while in that of alkene S character is high, and the concentration of S character is 33.33%, while in those of alkanes in sp3 hybridization concentration of S character is 25%, while in that of alkenes S character is 33.33%. Due to S character due to more S character, there will be strong overlapping in case of alkenes as compared to alkanes. Now number 4 point is solubility. Alkenes are soluble in alcohol. And last point is reactivity. There is a short question as well. Why alkenes are reactive? Why alkenes are highly reactive? As you know that alkenes are highly reactive. Alkenes में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड जो है ये डिफ्यूज्ड होता है. Alkenes are highly reactive. Alkenes contain sigma and pi bond. Pi bond अब इसमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, जबकि पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड. वी कैन इजीली ब्रेक पाई बॉन्ड. अब इसमें जो है अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इफ इट विल अटैक ऑन पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. अब इलेक्ट्रोफाइल जो है कोई भी आएगा, इलेक्ट्रोफाइल किसके लिए आता है? इलेक्ट्रॉन की तलाश में आता है, तो फौरन इस पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोफाइल जो है ब्रेक कर देगा और इसकी जगह आकर अटैच हो जाएगा. हम आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें मैं आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट विल अटैच with carbon atom after breaking this pi bond. I will explain it with the help of examples. Now I am going to discuss the chemical reactions of alkenes. There are two types of chemical reactions which we will discuss here: addition reactions and oxidation reactions. Addition reactions की जो है 5 फर्दर हम स्टेप्स addition reactions पढ़ेंगे, 5 फर्दर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे. अब इसमें सबसे पहले व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. दिस इज इथेन व्हेन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल E partial positive charge it is supposed to be electrophile and B negative charge it is supposed to be nucleophile. Electrophile is electron loving, nucleophile is nucleus loving. अब when this electrophile EB will attack on ethene, then this double bond will break down, and in this way carbon carbon single bond, and this E is attached with both these carbon atoms in this way. This is the product which will be produced, and B negative
न्यूक्लियोफाइल इससे निकल जाएगा, बी नेगेटिव प्रोड्यूस होगा इन द सेकंड केस। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब पहले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया दो कार्बन एटम्स के दरमियान, ये दो कार्बन एटम है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। अब दूसरे केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरी कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल बी नेगेटिव अटैच हो जाएगा, एंड इन दिस वे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कैंसल ईच अदर। ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये दो हाइड्रोजन आ गए, ये न्यूक्लियोफाइल बी आ गया और ये दो हाइड्रोजन आ गए, एंड इन दिस वे दिस प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। This is the final product which has been obtained from here, and this is the also you know that this is the general mechanism of electrophilic addition reaction which I have explained here. This is the general mechanism of electrophilic addition reactions. I will, my dear students, now the examples of electrophilic addition reactions of alkenes. Now I am going to tell you the examples of electrophilic addition reactions of alkenes. There are 5 types. Number 1, hydrogenation. Number 1, hydrogenation. Hydrogenation, अब इसके अंदर जो है, this is the first reaction. There is a short question as well. Define hydrogenation of alkene. What is called heat of hydrogenation? This is a short question, very famous short question. Define hydrogenation of alkene. What is called heat of hydrogenation? My dear students, first of all, hydrogenation, addition of hydrogen is called hydrogenation. Very simple. When hydrogen is added at 1 to 5, when hydrogen is added at 1 to 5 atm pressure and in the presence of specific catalyst, then it is called hydrogenation. This is the actual definition of hydrogenation which you will have to write down. Now, for example, let us take this example. This is 3-methyl 1-butene. 3-methyl 1-butene, 3 पोजीशन पर मिथाइल है और 4 कार्बन एटम है, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 3-methyl 1-butene. When we add hydrogen, then we will add hydrogen in the presence of specific catalyst, that is Raney nickel. I will explain what is Raney nickel after some time, and this reaction will take place at 100 degrees Celsius. We may also use, instead of Raney nickel, platinum or palladium, but they are costly, therefore we will use Raney nickel. Then what will happen, my dear students, this double bond will break down, one hydrogen will attach on this carbon atom and one hydrogen will attach on this carbon atom, and in this way CH3 CH3 CH2, ये CH पहले CH था, अब क्या होगा CH2 और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या बन जाएगा CH3 एंड इट्स नेम इज 2-methyl butene. 2-methyl butene. अब ये 2-methyl butane, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, इट्स नेम इज 2-methyl butane. Now the next example is benzene. You know benzene contain 6 double bonds in its ring. ये हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है ये जो 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस होती है. अब इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं. व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन टू बैलेंस 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 6 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल. देन ये सारी पहले क्या थी CH, अब सब CH2 बन जाएगा और डबल बॉन्ड विल ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इन दिस वे
final product is called cyclohexane. Cyclohexane will be produced. This reaction is highly exothermic and huge amount of heat will be evolved. That heat is called heat of hydrogenation. What is heat of hydrogenation? I am going to define it. What is heat of hydrogenation? When we do hydrogenation of 1 mole of alkene, when we do hydrogenation of 1 mole of alkene, the heat evolved during this process is called heat of hydrogenation. एक डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए -119.5 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, पर डबल बॉन्ड यानी कि एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी इवॉल्व एंड दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब शॉर्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड व्हाट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेनी निकल, हाउ रेनी निकल इज प्रोड्यूस्ड and why, there is the short question, why Raney nickel is preferred over ordinary nickel, what and how Raney nickel is produced. My dear students, we add nickel aluminium alloy. This is nickel aluminium alloy. When it is reacted with base and water, then what will happen? Raney nickel will be produced and sodium aluminate will be formed, and in this way 1.5 molecules of hydrogen will be produced. 3/2 means that 1.5 molecule of hydrogen. Now this Raney nickel is better than ordinary nickel because reactivity of Raney nickel is high as compared to ordinary nickel. इसकी वजह क्या है? Because the surface area of Raney nickel is porous and its surface area is more. इसका surface area ज़्यादा होता है and the rate of reaction increases. क्योंकि इसका surface area ज़्यादा होता है, इसकी surface porous होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। और बिकॉज सरफेस एरिया इज हाई, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। दीज आर द रीजंस कि हम ऑर्डिनरी निकल के ऊपर रेनी निकल को जो है, ये रेनी निकल को प्रेफर करते हैं ओवर ऑर्डिनरी निकल। रेनी निकल, सिंपल निकल जो है, एक दूसरी इसकी रीजन क्या है? सिंपल निकल जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है, जबकि रेनी निकल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर भी रिएक्ट कर जाता है। यहाँ देखिए मैंने रेनी निकल यूज किया और टेम्परेचर कितना रखा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ हम सिंपल निकल यूज करेंगे तो हमें टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा और ज्यादा फ्यूल यूज होगा। इट इज मोर इकोनॉमिकल। नाउ पेपर में आ जाता है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, हमने क्या पढ़ा? पहला रिएक्शन हाइड्रोजनेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बाय हाइड्रोजनेशन वी कन्वर्ट unsaturated fatty acids, that is oils, into saturated fatty acid, that is ghee, and it is also used in soap industry. And number second one, it is an analytical tool to check unsaturation. अब ये एक एनालिटिकल टूल है, ये अनसेचुरेशन किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है कि उस कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड है। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन, सेकंड एग्जांपल इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। It's very simple, addition of hydrogen and halogen, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का ऐड हो जाना हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है।
अब इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर एक्टिव देन HBr देन HCl देन HF. You know that हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है and is more reactive acid. It is strong acid. Hydrogen iodide is very strong acid and its reactivity is high. अब इसमें सबसे पहले क्यों इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है? क्योंकि ये प्रोटॉन को इजीली लूज कर सकता है. नाउ टेक द एग्जांपल, दिस इज इथीन एंड आई एम गोइंग टू ऐड HX हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन. अब इसमें हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, हेलोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, एंड इन दिस वे अल्काइल हेलाइड विल बी प्रोड्यूस्ड CH3CH2X. नाउ आई विल टेक द स्पेसिफिक एग्जांपल. दिस इज इथीन. व्हेन वी ऐड HCl, देन एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस कार्बन के साथ Cl अटैच हो गया, एंड इन दिस वे बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर एडेड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन. नाउ what is the mechanism of this reaction? It's very important mechanism. First of all, my dear students, first of all, ये positive charge hydrogen ion will add in this ethene molecule and this double bond will break down. अब ये देखें, ये Ci2 डबल सिंगल बॉन्ड Ci2 एक हाइड्रोजन है अटैच हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये जो X है ये निकल गया. ये बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल देखें. एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है. पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और न्यूक्लियोफाइल ने इसके बाद दोबारा अटैक किया किसके ऊपर? इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हेलोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड इन दिस वे CH3CH2X इथाइल हेलाइड विल बी प्रोड्यूस्ड. अब यहां Cl लगा दें तो इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, Br लगाएंगे इथाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो जाएगा. यानी इसका मतलब क्या है कि ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको आप क्या कहें? इलेक्ट्रोफाइल है. और आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल है और नेगेटिव चार्ज वाला क्या है? न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा. न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है. इसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसके ऊपर और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया और खुद भी इसमें ऐड हो गया. जिस तरह मैंने आपको ये वाला मैकेनिज्म समझाया था ये उसकी एग्जाम्पल है. अब यहां पर मैंने ई और बी की एग्जाम्पल दी थी. ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बी फॉर न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव चार्ज. यहां स्पेसिफिक एग्जाम्पल आ गई HCl की. अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स एक रूल आ जाता है, मार्कोनी-कोव्स रूल. मार्कोनी-कोव्स रूल क्या कहते हैं? इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन कौन सी अल्केन होती है? ऐसी अल्कीन जिसमें एक, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी अल्कीन जिसमें एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन हो और उसके साथ वाली कार्बन पर जो है दो हाइड्रोजन हो, यानी अनसिमेट्रिकल. ये देखें ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है. अब इस केस में देखें CH डबल बॉन्ड CH2, जब ऐसी कंडीशन आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए या कोई R ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या होगी? इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन. ये कहता है मार्कोनी-कोव्स रूल क्या कहता है
कि इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम लगे हों, दूसरी कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन एटम लगा हो, तो ऐसी अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन का नाम देते हैं। और ये वाली क्या होती है, जिसका अगर दोनों कार्बन अटैच्ड कार्बन एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो वो अल्कीन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये जो मार्कोनी-कोव्स रूल्स है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनी-कोव्स रूल जो मैंने लिखी हुई है, if unsymmetrical reagent, that is HCl, is added to unsymmetrical alkene, the partial negative end of the reagent, that is chlorinant, will go to that carbon atom which have least number of hydrogen atoms. अब ये रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट, अगर HCl एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, इस पर पार्शियल हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है और ये भी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इसका नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड कौन कौन से हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास जाएगा। अब मार्कोनी-कोव्स रूल ये कहता है कि नेगेटिव एंड उस हाइड्रोजन के साथ जाकर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम सबसे कम होंगे। अब इसमें देखें, CH इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्लोरीन एंड जो है यहां पर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHCl CH3, और ये जो पॉजिटिव एंड है यहां ऐड हो जाएगा, एंड इन दिस वे 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी प्रोड्यूस्ड। अब एक क्वेश्चन आता है, अब इसमें ये देखें व्हाट विल हैपन कि 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, क्योंकि हमने क्या किया, अनसिमेट्रिकल रीजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोव्स रूल ऐड किया। Now the reaction number 3 is addition of sulfuric acid. Addition of sulfuric acid to alkene. This is alkene. We take cold concentrated H2SO4 for this reaction. This is a unsaturated alkene, और इसको जो है सिमेट्रिकल अल्कीन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने इस तरीके से लिखा, HO, S के साथ ऊपर और नीचे 2 डबल बॉन्ड है, OH। अब इसमें ये वाला जो एंड है, एक इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव एंड है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव एंड है। अब देखें इस केस में ये जो पार्शियल नेगेटिव एंड है या पार्शियल पॉजिटिव एंड है, वो चूंकि अल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल, किसी के साथ भी आप अटैच कर दें, चाहे इसको पहले के साथ अटैच कर दें चाहे दूसरे के साथ अटैच कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई नहीं होगा। अब सपोज दैट इसको मैंने इसके साथ पहले वाले हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ अटैच कर दिया, इस हाइड्रोजन को यहां अटैच कर दिया, ये बन गया CH3 CH2 और आगे ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो है अटैच कर दिया। अब इसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, नाउ अब इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है जब वाटर ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, अब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिमूव हो जाएगा और ये जो OH है ये जाकर जो है यहाँ CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, एंड इन दिस वे इथाइल अल्कोहल विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब इसको एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का भी रिएक्शन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन बना, ये जो प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या है, ये इथाइल है और हाइड्रोजन लगा हुआ है और सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में फर्दर इसके अंदर वाटर डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल के अंदर। Dear students, now take another example. This is the unsymmetrical alkene propene CH3 CH डबल बॉन्ड Ci2, ये प्रोपीन है। इसके अंदर जो है हम इसकी हाइड्रेशन करने लगे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जो पार्शियल नेगेटिव एंड है और एक पार्शियल पॉजिटिव एंड है। अब पार्शियल नेगेटिव एंड जो है किस कार्बन के साथ अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल जो है ये जो नेगेटिव एंड है ये किसके साथ अटैच होगा, उस कार्बन के साथ जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ अटैच होगा। और ये आपके सामने है। अब ये दूसरे कार्बन के साथ CH के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये बन गया CH3 CH CH3, और इसके साथ ये वाला हमने अटैच कर दिया ग्रुप, और साथ इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड किया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया। व्हाट विल हैपन, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास 2 प्रोपानोल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। 1 प्रोपानोल क्यों नहीं बना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर 2 प्रोपानोल क्यों बनता है, तो 2 प्रोपानोल इसलिए बना क्योंकि मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक। ये 2 प्रोपानोल क्यों बना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ये जो पार्शियल नेगेटिव एंड वाला जो रीजेंट है ये वाला, ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं। तो इसलिए इस केस में 2 प्रोपानोल बनेगा, 1 प्रोपानोल नहीं बनेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप जो है इसी का इस तरीके से जवाब दें। नाउ द नंबर 4 रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। नंबर 4 इज हेलोजिनेशन, addition of halogen to alkene in the presence of non-polar solvent। कौन सा non-polar solvent यूज करेंगे, in the presence of non-polar solvent कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की मौजूदगी में हेलोजन ऐड करें, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज देखें, फ्लोरीन इज मोर एक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर एक्टिव देन आयोडीन। अब इसमें आयोडीन जो है, आयोडीन के केस में जो है आयोडीन की हेलोजिनेशन नहीं होती। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत विगरस होता है, बहुत फास्ट होता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन जो है कंट्रोल्ड होता है। ये जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड है। अब इसके अंदर जो है ये अल्कीन है, अल्कीन के अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इन दिस वे CH2Br 1,2 डाइब्रोमो इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये देखें यहां पर एक और चीज है, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कलर जो है रेडिश ब्राउन होता है, और जब 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये इसकी अल्कीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये टेस्ट यूज किया जाता है। आगे जाकर जो है इसका क्वेश्चन आएगा, मैं आपको उस वक्त भी इसके बारे में बताऊंगा कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखें, अगर ब्रोमीन को आप जो है सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ऐड करेंगे तो उसका जो है कलर चेंज नहीं करेगा, यानी अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करेंगे तो इसका कलर डीकलोराइज कर देगा। ये आपको जो है बड़ी अहम चीज है जो आपको याद रखनी है। तो ये CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी याद रखिएगा। और इसमें दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब ये इसका मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताने लगा हूं। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन हमने किया हेलोजिनेशन के, इसका मैकेनिज्म क्या है, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब ये इथीन है, इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे। एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या बताया था आपको, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा।
इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होगा। और ये जो है जब ये ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल ने इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके ऊपर ब्रोमीन जो है पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएगा और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। बाद में न्यूक्लियोफाइल दोबारा, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, दोबारा अटैक करेगा इस रिएक्शन के ऊपर। ये अनस्टेबल है, इसके ऊपर जब ये दोबारा अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, एक ब्रोमीन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड इन दिस वे आप देखें व्हाट विल हैपन, एक ब्रोमीन यहां लगा है इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। और मैंने आपको बता चुका हूं अल्कीन की प्रेपरेशन के अंदर अगर 2 कंसेक्टिव कार्बन एटम के साथ हेलोजन ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहेलाइड, या इसका दूसरा नाम जो है, अब इसमें ये अगर 2 कंसेक्टिव जैसे देखें CH2Br CH2Br, तो ये वाला क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहेलाइड। अब विसिनल डाइहेलाइड क्यों बना, क्योंकि 2 कंसेक्टिव पोजीशंस के ऊपर क्या लगे हुए हैं, हेलोजन लगे हुए हैं। और दिस इज द मैकेनिज्म, जो रिएक्शन आ रहा है पहले रिएक्शन है उसके साथ उसका मैकेनिज्म है। दीज आर द कंसेप्ट्स विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो आपको जहन के अंदर जो है लाजमी होने चाहिए। हर रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी याद रखें कि अब इसमें देखें कि अल्कीन के अंदर 2 बॉन्ड हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। वो बॉन्ड अक्सर MCQs के अंदर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच होगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टू नोट प्लीज। अब दिस रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है इसको कहाँ यूज किया जाता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, कौन सा रिएक्शन, ये जो है ये हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोजिनेशन जो है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स, कि ये अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। कलर ऑफ ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। कलर ऑफ ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन। आफ्टर द रिएक्शन ब्रोमीन जो है इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस तरीके से जब क्लोरीन का, जब ये इथीन अल्कीन का जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अल्कीन में चेंज हो जाएगा, तो उसका कलर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अल्कीन किसके अंदर चेंज हो गई, अल्कीन के अंदर। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो गई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। My dear student, the last reaction of addition reaction is addition of hypohalous acid. Addition of hypohalous acid. Now, first of all, this is halogen. When halogen is reacted with water, then what is produced? HOX. HOX is called hypohalous acid. X contain positive charge, partial positive charge, while OH contain partial negative charge. This hypohalous acid HOX is reacted with the alkene, and in this way, what will happen? OH will attach to this carbon atom, and hydrogen X will attach to this carbon atom, and in this way, halohydron is produced. अब इसमें मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसके अंदर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन किस कार्बन के साथ अटैच होगा, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये सेकंड वाली हाइड्रोजन के साथ OH लग जाएगा और पहले वाली हाइड्रोजन के साथ X लग जाएगा और हेलोहाइड्रन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा।
My dear students, this is all about the chemical reaction, addition reactions. These are the 5 examples which I have told to you, with examples with their mechanism and with their full concept. My dear students and my dear viewers, please like and subscribe my video, and also share my video, and also press the bell icon. Thank you.